अनौपचारिक पैनल हमारे बीच, जिसमें सदगुरु श्री दयाल भी हैं और प्रहलाद कक्कड़ जी भी हैं, उषा जी भी हैं, सुनंदा जी भी हैं, विक साहब भी हैं। और ये एक ऐसा जिसमें हम सभी अलग अलग तरह की बातें करेंगे। श्री कुमार मेनन जी, मैं आपको चाहूँगी आप डायस पे आएँ। प्रहलाद कक्कड़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब भी हमने ब्रांड की बात सोची है, जब भी ये शब्द हमारे दिमाग में आता है तो एक ही नाम याद आता है, एक क्या कहूँ, एक दो नाम याद आता है। एक एलेक पद्मसी साहब, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि ब्रांडिंग क्या चीज़ है। अब मेरे दाएं हाथ में 3 लोग बैठे हैं। एक सन्यासी जो भारत के सनातन ब्रांडिंग है, जिसको कहा जाए, भारत को अगर जाना जाता है तो इसी के लिए जाना जाता है। आप स्वयं जो कि इस फील्ड के माहिर हैं, और वी.एस. श्री कुमार जो उभरते हुए आपके शिष्य भी हैं। ब्रांड भारत की सर जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज योर विजन अबाउट ब्रांड भारत? सी टुडे मैं अंग्रेजी में बात करूंगा क्योंकि मेरा हिंदी टीचर जो देहरादून का था, मिस्टर बदवार, वो मुझे एक टाइटल सौंप गए हैं कि अंग्रेज चले गए, आपको छोड़ गए। तो आई हैव ऑलवेज बीन बेटर एट इंग्लिश देन हिंदी। मेरी हिंदी थोड़ी नरम है, तो I'll express myself best in English, and if I have to abuse, I'll do it in Punjabi, because there is no abuse like Punjabi. So, एक तो dichotomy है ये कि अभी we are at a crossroads today, where we have to decide as a country, are we India or are we Bharat? That the judgment has not gone out on yet, and believe me, I don't think that's a political domain. I think that domain lies with the people of India or the people of Bharat. What would they like to call themselves? Only when you decide whether you are Bharat or whether you are India, can you even start to build a brand. Because you can't have 2 brands. You can only have 1 brand. No, that is not a political decision. It is not to be debated in parliament. बिल्कुल गलत है. It should be put to the people of this country. वो आप अपने आप को क्या बुलाना चाहते हैं? Whether north, south, east, west. And if we don't take a census of that, we will always be divided as a country, and we will always be divided as a brand. बिल्कुल. और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। वी.एस. श्री कुमार, जब ब्रांड की आपकी बात होती है, जो सर ने कहा कि ये कुछ डिवाइड करके नहीं सोचा जा सकता है, हाउ डू यू थिंक? थैंक यू राजेश्वरी जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड यू नो इट्स ग्रेट प्लेजर सर. आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स ever since I have been in advertising, and I come from Kerala, the southern part of India, and I I run an agency by myself, and and I do make advertising films. So, sir, I would like to say this: Brand Bharat. Imagine a country with 5,000 years of legacy, and imagine a country with 250 years or 300 or 500 years, like US, who has become much more bigger brand than us. The perception-wise, why? It was sold better, I would say. It was branded better. It was positioned better, and it was positioned as, what do you say, a nation or a country which saves the world. Yeah. So it saves the world, and we are not proud of what we have. We are not proud of our mythology. We are not proud of our lineage. We are not proud of our culture. We don't see the whole of India, but we see the rest of the world. What is this? India has much more to offer and to see than many of the countries. But we don't see India, but we go and see the world, and we call ourselves as travelers. And if you look at it for weddings, we don't see India as a destination. We go out to celebrate wedding, so where is brand India comes there. And if you look at cinema, we try to copy English films. We try to copy, Western films. Our children plays with Superman, Spider-Mans, and Barbie dolls. We don't have,
does it mean that we don't have Indian heroes? We have Indian heroes, and we never make films on our culture. We try to imitate, or we try to follow the culture of other countries, or Western countries, whereas they are making films based on the threads from our mythology. Okay, that means we as Indians are not proud about the brand India, where the world came to here for education. Yeah, where the education came here, where the world came here for education in Nalanda. Now every child wants to go out of India. What is this? Where are we? So the brand Bharat has to happen, or the thought of brand of Bharat has to happen in everybody's, in mindset. And we need to be proud of our culture. We need to start celebrating our culture. Then only our brand will become, better and brighter. The whole perception about, you look at the way we branded yoga. Yes. Yoga, in every country, yoga, practicing yoga is a statement. Yes. Look at the way we smartly branded yoga. Like that, we should brand our culture, we should brand our mythology, we should brand our philosophy, we should brand our land. We should be talking more about our land, beauty of our land, culture of our land, rather than becoming the ambassador of other countries. Going there, my marriage was in Paris. What does it mean? Does it mean demeaning our brand? Yes. जोगविंदर सिंह जी हमारे साथ है। जोगविंदर सिंह, जब हम सभी लोग इंडिया मतलब भारत में रह के अपने ही भारत देश को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहा जाता है कि अपना देश किसको प्यारा नहीं होगा। आप भी भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, भारत को दिल में बसाकर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जब बाहर से देखते हैं आप भारत को, तो कैसे पाते हैं कि किस तरह से भारत एज अ ब्रांड बाहर से देखा जाता है? First of all, thank you very much, Rajshri ji. You have done a wonderful event today. First of all, round of applause for Rajshri ji on the stage here. जब ये सवाल हमारे मन में बार बार आता है, मुझे 20 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में, और 2009-10 में जब मैं प्रवासी भारतीय दिवस में गेस्ट स्पीकर था, यही हॉल था और ये सारा भरा हुआ हॉल था, तो मेरे से पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में क्या फ़र्क है, और वही चीज़ तब थी और वही चीज़ आज है। ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ है बट हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तब की बात करें और अभी की बात करें गडकरी जी के भाषण के बाद, तब मैंने बोला था इंडिया में कुछ भी नहीं है बट सब कुछ यहाँ पर है। अभी जो महसूस हो रहा है इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है जी, जो बाहर के लोग जाते हैं, जो आप बोल रहे थे ब्रांड, ठीक है भारत का ब्रांड बहुत बड़ा है, हम तो आप यहाँ ही सोचते हैं, पर जो यूथ है, यूथ को ब्रांड बाहर का अच्छा लगता है, बाहर के ब्रांड कपड़े हों, गाड़ियाँ हों, सारा कुछ महंगा है। हम इंडिया में बहुत अच्छे मंदिर बना पाए, गुरुद्वारे बनाए पाए, मस्जिदें बना दी, पर हमने वो टेक्नोलॉजी लेवल पे, इनोवेशन लेवल पे बहुत पुअर हो गए। इस वजह से हमारा ब्रांड कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, तभी हम यूथ को यहाँ पर नहीं रख पा रहे। तो हम तो जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला है, हम वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ गुरु नानक, भाई जो आदमी बाहर जाएगा हमेशा अच्छाई फैलाएगा। हम तो वहाँ भी रहते हैं, अब तो हमारे दिल में तो भारत ही रहता है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट भारत, तो तभी भारत को भारतीय बोला जाता है बाहर हिंदी में। तो ब्रांड अगर हम इंडिया में कोई कमी नहीं है, इंडिया की किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, किसी स्टेट में कोई कमी नहीं है, कमी है विश की। जैसे 10 किलो दूध को जमाने के लिए 10 किलो दही नहीं चाहिए, दही जमाने के लिए थोड़ा सा जाग चाहिए, वैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में वी आर वेरी पुअर इंडिया एज ए कंट्री इन इनोवेशन इन टेक्नोलॉजीज। Government has to spend a lot of money in research and development. Then we can stop our youth going abroad. Otherwise, I don't see anything where we can keep our youth back in our country. Thank you. जी बिल्कुल। और जोगिंदर सिंह विर्क जी, जैसा आपने बताया कि बाहर से बहुत कुछ आप लोग देखते हैं और दिल में बसा के रखते हैं। मैं समझती हूँ कि ब्रांड भारत की जब बात आती है, तो एक तो दो लोगों की भूमिकाएं हैं। एक जो भारत में अब बड़े हो चुके हैं, बहुत कुछ देखा है उन्होंने भारत के अंदर। एक वो जो बिल्कुल यंग हैं, जो बिल्कुल युवा हैं, उनके दिल में भारत अलग तरीके से बसता है और उत्साह से बसता है। लेकिन इन सबको जो जोड़ के रखता है, दो चीज़ें हैं जो जोड़ के रखती हैं। एक तो आर्ट कल्चर, और दूसरा वो जो सबके अंदर बसता है, यानी कि भक्ति या किसी तरह का विश्वास। भक्ति न भी कहूँ तो किसी तरह का विश्वास। विश्वास की बात जब आती है तो सदगुरु श्री दयाल हमारे बीच हैं। सर, सदगुरु, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर हम युवाओं के मद्देनज़र से अगर देखें, उनके नज़रिए से देखें, तो धर्म दो तरीके से उनके दिमाग में आता है। एक तो अंधविश्वास के रूप में आता है और एक विश्वास के रूप में आता है।
ब्रांड भारत को आज की तारीख में इन युवाओं के अंदर किस तरह के विश्वास की, किस तरह के नज़रिए की ज़रूरत है कि वो भारत की ब्रांडिंग में भी काम आए और साथ ही एक ऑर्थोडॉक्स भारत न समझा जाए बल्कि एक युवा और प्रगतिशील भारत देखा जाए। बड़ा अनोखा कॉन्क्लेव है और बहुत रुचिकर विषय पे हम लोग आज यहाँ पर परिचर्चा कर रहे हैं। ब्रांड ये मेरा विषय तो नहीं है, ये तो राजेश्री जी का विषय है, बगल में प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद कक्कड़ जी इनका विषय है। पर यहाँ पर बात धर्म और आध्यात्म की। धर्म और आध्यात्म दो अलग अलग धारा है। धर्म का मतलब कर्म का बोध और आध्यात्म का मतलब स्वयं का बोध। स्वदेश कॉन्क्लेव है ये, इसमें स्व है। स्व यानी हर व्यक्ति स्वयं। आपसे ही देश बनता है, अन्यथा देश क्या है? एक एक व्यक्ति से देश बनता है। तो पहले युवाओं की बात हुई तो युवाओं से शुरू करें, बच्चों से शुरू करें और फिर हर जन जन तक इस बात को जोड़ें कि पहले हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कौन क्या करता है, किसको क्या करना है, इस पचड़े में पड़े बिना हम अपनी जिम्मेदारियों का, उत्तरदायित्व का अगर ठीक से निर्वहन करें तो ये देश चमचमाएगा भी और मुस्कुराएगा भी। जैसे कि नितिन गडकरी जी थे अभी हमारे बीच, उन्होंने एक बात बताई कि आज विश्व में सबसे अच्छे डॉक्टर भारतीय माने जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे अच्छे भारतीय माने जाते हैं। हम सब में कितनी प्रतिभा है, कितना दम है, ये शायद हमें ही पता नहीं है। एक जल्दी से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बेगर भिखारी भीख मांग रहा था और जब वो गुजर गया, उसको जब उसका झोपड़ा हटाया गया तो उसके नीचे खजाना था जिस पर बैठकर वो भीख मांग रहा था। ये हम हैं। अगर हम स्वयं को निखार लें, संवार लें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपनी जिम्मेदारियों का बीड़ा उठा लें तो ये देश चमक जाएगा, दमक जाएगा और हम कहीं और पहुंच जाएंगे। हम सच में विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। एक एक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपनी वाणी, अपने आचार विचार। विदेशों में जब मैं जाता हूँ तो जहाँ नज़रें मिलती हैं अभिवादन करते हैं। यहाँ तो ऐसी न कोई परंपरा है न कोई रिवाज। हम तो मुस्कुराते भी नहीं हैं। यहाँ पर हमें हम ये समझते हैं कि सड़क की सफाई की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। बाहर ऐसा नहीं होता। तो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ, हमारे वचन से किसी को पीड़ा ना हो, हमारे व्यवहार से किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो। एक एक कदम पर हम अपने स्वयं को संवारें और निखारें, खुद को बनाएं, देश अपने आप बन जाएगा। ब्रांड भारत में शिक्षा का विशेष महत्व होता है और इसीलिए हमारे अगले मेहमान जो हैं वो शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए हैं। वो नेहू के वाइस चांसलर हैं और इस वक्त शिलोंग से जुड़ रहे हैं। और प्रभाष शंकर शुक्ला जी जो इस वक्त शिलोंग से जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है ब्रांड भारत में। As we delve into the essence of brand Bharat, it is imperative to recognize that our universities serves as a bedrock upon which this brand is built. As the Vice Chancellor of the Northeastern Hill University, I have had the privilege of witnessing firsthand the transformative power of education in the Northeast region of India. Our university, with its rich heritage and commitment to excellence, has been a beacon of knowledge and progress. Under my tenure, NEHU has embarked on a journey to strengthen its academic and research capabilities, ensuring that we remain at the forefront of innovation and intellectual pursuit. In the context of Bharat brand, universities like NEHU play a crucial role in preserving and promoting our cultural heritage. Thank you
Khublai, Shugun and Mitela. Thank you. बिल्कुल, और शायद यही मूल बात है। और जब मूल बात की बात आती है तो एक चीज़ जो हम सबों के दिलों में बसती है और वो है संगीत। तो सुनंदा जी, मैं ज़रूर चाहूँगी आपसे एक सुरीला सुर इसके साथ ब्रांड भारत को जो परिचित कराते। मंच पर बैठे सभी गुणियों को मेरा प्रणाम, और सामने बैठे ब्रांड भारत, सामने हमारे बैठे हैं, आप ही भारत हैं, हम भारत हैं। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो जब तक कला और संस्कृति की बात ना हो तो ये बात अधूरी रह जाएगी। हमारे गुरुओं ने इतना तप, इतनी साधना संगीत में, योग में की कि आज पूरे विश्व में जब भी हमारे संगीत की बात आती है तो विश्व के सबसे बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि वो इंडियन म्यूज़िक को सीखें, क्योंकि हमारा जो स्वर साधना है उसमें वर्षों लगते हैं। ये एक मेडिटेशन की तरह है और इसको हम समर्पण के भाव से करते हैं, और इसमें यही भावना होती है, भक्ति की भावना होती है। समस्त लोका सुखिना भवन्तु, सुखिनो भवन्तु, हम सबके सुख की कामना करते हुए ही ब्रांड भारत को ये सलामी मैं देती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।